नमस्कार। आत्मनिर्भर भारत का ये एपिसोड लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं आंचल गुलाटी। Let me go now to Mr. Goyal. Mr. Goyal, your comments here, because this is a very important and landmark step taken as far as India's renewable energy journey is concerned, and it also goes on to show the commitment of the government of India to make India a global hub of clean and secure renewable energy. So, through your medium, first of all, I would like to congratulate the Indian government for putting up the Asia's largest solar power plant in the state of Madhya Pradesh, and it is going to put India in a different league. Number one, I mean, it is Asia's largest solar power plant. Now, with the commissioning of this Rewa solar power plant, there is going to be huge reduction in the carbon emissions, which is equivalent to around 1.5 million tons of carbon dioxide per month. This is one thing, and so we are going in a direction of achieving the 100 gigawatt by year 2022, in line with the vision of the Prime Minister, which he committed in the COP21 in Paris. As far as this project is concerned, it has achieved within the timelines, and I must accept that it's quite remarkable, because through this project, Delhi Metro is going to be fitted from one state to other state, which is a total new direction in the grid, taking in mind the grid parity and the stabilization. जी। Well, what would you say that the important aspects that makes this Rewa mega solar project so significant? And one important thing to note here is, and that's very important, Mr. Goyal, and your comments on that, because the project will reduce carbon emissions equivalent to 15 lakh tons of carbon dioxide. Yes. Mr. Goyal. In the sense that it's a very significant way to take it forward in the reduction of the reduction of the carbon dioxide in India, which is in line with the commitment of this Paris Climate Summit. And through this project, we are also going into the direction of become the Atmanirbhar, which has been indicated by the Prime Minister. And I would also like to comment on 3-4 things. If you see, through this solar sector, there has been a significant job creation in India. In 2016, there were around 21,000 people who were working in this sector. Now, in the last year, there were around 77,000 people who were working in the solar sector. Other terms, India has attracted very huge investment in India. I think in the last 2 financial year, if my memories goes well, it's around 80,000 crores. And it has been achieved through the foreign utilities, venture capital funds, PE investors, sovereign wealth funds, pension funds, oil and gas companies. Since I have been working on, in the past I was working with the French government company Areva, so there's a very significant emphasis of the renewable energy and solar energy. And I have also worked with a few companies whom I advised to make an acquisition in India. And just around few months back, at the beginning of 2020, there was a big French group which made a significant acquisition of around $1 billion in India. So through this solar emission, we are going in the Atmanirbhar direction by creating the job, by reducing the price of the energy, by attracting the investment, and also going into the direction of the Make in India program. There has been a huge investment in the manufacturing side, which is creating the jobs. Sure. Okay. आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा कि एक तो जो बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस और जो इनोवेशन इंडिया के बाहर चल रही हैं, हम उसको सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हम उसको कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ कि ये इनोवेशन क्या है। तो अगर आप ये देखें कि अगर आप ये बाहर की कंट्री में जाएं, वहाँ पर जो पर्टिकुलरली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो वहाँ पर जो बैटरी है उसकी वजह से वो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जा रहा है। वहाँ पे उन्होंने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, चाहे वो कार हैं, चाहे वो बसेस हैं, इस तरह की वहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है कि उनकी बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा है।
तो इसकी वजह से जो ऑटोमोबाइल की जो प्राइसेस हैं वो कंटिन्यूसली घटती जा रही हैं। अभी भी इंडिया के अंदर इसकी जो कॉस्ट है थोड़ी हाई है। जी। ये जो ऑटोमोबाइल के अंदर जो इनोवेशन है हमको इसमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, और जो हम कर भी रहे हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक प्राइसेस की गाड़ियों की प्राइसेस देखें तो वो पिछले 5 सालों में करीब 50% कम हो गई है। एक तो ये तो बात हो गई ऑटोमोबाइल क्षेत्र में। जी। मैं इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा आपको कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में ही कि इंडिया के बाहर वो क्या क्या ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बहुत अहम जी। इसमें मैं 3-4 पॉइंट आपको क्विकली बताना चाहूंगा। पहला पॉइंट है ये इंटरकनेक्ट एंड लार्जर बैलेंसिंग एरिया। ये मेजर है, इसका एग्जांपल है कि अगर आप चाइना के गांसू प्रोविजन एरिया में जाएं, वहां पे उन्होंने ट्रांसमिशन लाइन डेवलप कर ली है जो 1 गीगावाट हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है, और जो पीक टाइम में 71% लोड ले सकती है। अभी इंडिया में इस तरह के ग्रिड अवेलेबल नहीं है जो हम इंडिया में अडॉप्ट कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, जब ये इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, इंडिया में अडॉप्शन होगा, तो लिमिटेड जो पोटेंशियल है रीजनल कैपेसिटी का, जिसके लिए हम भारत सरकार उस पॉलिसी पे भी काम कर रही है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए, उसको एनर्जी ट्रांसमिट करने में बड़ी हेल्प मिलेगी। दूसरा पॉइंट है कि अभी जो इंडिया के अंदर जो हमारा जो डिस्पैच स्पीड है वो करीब 15 मिनट के आसपास है, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाएं तो देखेंगे कि वहां पर जो बहुत शॉर्टर डिस्पैच इंटरवल है, जो 5 मिनट के अंदर जो है वो एनर्जी ट्रांसमिट हो जाती है। तीसरा इसका मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, जो यूके के अंदर मैंने देखा, वहां पे जो उनकी मार्केट प्राइस जो है एंसिलरी इक्विपमेंट्स के लिए, वहां की जो फ्रीक्वेंसी है, उन्होंने सब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स प्रोडक्ट डेवलप किया है। और इंडिया में अभी जो है हम अभी बहुत बिगिनिंग स्टेज पे हैं। से मुतल्लिक आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से हम जानते हैं कि केंद्र सरकार ने सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग के लिए सोलर सब्सिडी स्कीम की शुरुआत की है। हालांकि इसमें वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र शामिल नहीं है, लेकिन किस तरह से इसका प्रचार किया जाए, इसलिए इस सब्सिडी स्कीम की शुरुआत की गई। किस तरह से आप देखते हैं, ख़ास तौर पर जब हम जानते हैं कि सौर ऊर्जा अपने आप में सिक्योर है, प्योर है, उसके लिए इस तरह की जो सब्सिडी स्कीम्स हैं वो कितना बड़ा एक धरातल जो है वो प्रोवाइड करती हैं आगे बढ़ने के लिए? आई थिंक जो इंडिया में जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में इतना बढ़ पा रहे हैं, इसमें ना केवल ये भारत सरकार की कैपिटल सब्सिडीज है जो आपने बोला है, बट इसके अलावा जो भारत सरकार ने जो अपनी पॉलिसीज बनाई हैं उसकी वजह से हम कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हो पा रहे हैं। अगर आप देखें, अगर हम कैपिटल सब्सिडी की बात करें तो आप देखेंगे कि रेजिडेंशियल रूफटॉप जो पीवी इंस्टॉलेशन है वो आज के टाइम में दे आर एलिजिबल फॉर 20 to 40% अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज। भारत सरकार ने, जैसे अभी आपने भी कुसुम योजना का जिक्र किया, तो करीब $5 बिलियन जो हैं जून 2020 को स्मॉल स्केल पीवी इन मैन्युफैक्चरिंग इन एग्रीकल्चर एरिया दे अनाउंस्ड इन 2019। लेकिन इसके साथ साथ आप देखें कि हम भारत सरकार की और कौन सी पॉलिसीज हैं जिससे हम इतने इंडिया में सक्सेसफुल हो रहे हैं, मैं उसका भी जिक्र करना चाहूंगा। तो उसमें पहले है लोअर कॉर्पोरेट टैक्स। अगर आप देखें, जो पहले जो हमारा जो कॉर्पोरेट टैक्स था वो करीब 35% हुआ करता था, जो करंट रेजीम में करीब 17% हो गया है। तो इससे अगर आप देखें, इट हैज हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग द लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सोलर बाय 8 to 10%। दूसरी बात है एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन। जो भारत सरकार ने जो ये पॉलिसी बनाई है उससे जो इन्वेस्टर के ऊपर करीब 40% उन्होंने अलाउ किया है एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन, जिससे इन्वेस्टर के ऊपर इनकम टैक्स बर्डन बहुत कम हो गया है। एंड इससे जो है इंडिया के जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो एक तो 2 तरह के कॉर्पोरेट्स हैं, जो एक ऑलरेडी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और दूसरे जो अभी नहीं काम कर रहे हैं, तो इतना बड़ा वहाँ पे उनको मार्केट दिख रहा है 130 करोड़ का, न केवल इंडिया की कंपनियों के लिए और बल्कि बाहर की कंपनियों के लिए जो इंडिया में आना चाहते हैं और डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं क्लीन पावर इन्वेस्टमेंट के थ्रू। इसके अलावा भारत सरकार ने जैसे एक इंटर स्टेट ट्रांसमिशन जिसको बोलते हैं ISTS, चार्जेस एंड लॉसेस होते हैं, जो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है ये सोलर एनर्जी के ट्रांसमिशन से। तो अगर आप इसका कॉस्टिंग में इफेक्ट देखें तो इसका करीब 0.65 रुपीज पर यूनिट का इसमें बेनिफिट मिलता है।
एंड लास्ट चीज जो है, जो बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत शानदार कदम उठाया भारत सरकार ने सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया विदाउट एनी रिव्यू। कोई भी Right. कंपनी अगर आना चाहती है तो बिना रिव्यू के वो कर सकती है। इसी वजह से लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में जो फॉरेन यूटिलिटी हैं, वेंचर कैपिटल फंड हैं, पी फंड हैं, इन्वेस्टर्स हैं, सॉवरेन वेल्थ फंड हैं, पेंशन फंड्स हैं, उन्होंने करीब 70 से 80 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में किया है। तो ये इस तरह की जो स्कीम इंडिया में कर रहे हैं, और अभी जो लेटेस्ट मेरे पैनलिस्ट ने बताया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, इस हिसाब से जो उनको इतना बड़ा मार्केट दिख रहा है इंडिया के अंदर, और जो इसमें वो आके यहाँ पर इंडिया के अंदर, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के माध्यम से है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से है, वो इंडिया में आना चाहते हैं। और भारत सरकार की ये बहुत ही प्रगतिशील योजनाओं की वजह से इंडिया में सोलर ऊर्जा को आगे बढ़ाना चाहते हैं।